Hello everyone. So today we're going to do factors part 2, and in the part 1 we have covered these topics: how to factorize prime factorization form of a number, how to write factors, number of factors, and sum of factors. Today we're going to start with the product of the factors. So let's see. And if you have any doubt, you can just let me know in the comment section with the slide number. Fine. So let's get started with the product of the factors. So product of the factors means, like, suppose there is a number n, you need to, let's understand this with the help of a very small example like 6. 6 is a number and the factors of 6 are 1, 2. These are the factors of the 6. Now you need to find the product of the factors of 6. So product of factors of 6 will be 1 into 6, 2 into 3, that is 36. Is it or not? The question is find the product of factors. So 6 के जितने भी factors हैं तुम्हें उनका product find करना है. I have told you like in the last session to remember this thing. That always write the factors in this form. Now you can see, is it helpful or not? Is it helpful now? This is giving 6. This is giving 6. So directly 36. Now what you can do, like simple, we can remember one formula. So there is formula. So if you need to find the product of factors of a number, so product of factors of a number, product of factors of a number n. Okay. The formula is n to the power n by 2, whereas n is the number of factors, where n is the number of factors of n. Small n is the number of factors of n. Note down this thing. Product of factors of n is given by n to the power n by 2, where small n is the number of the factors of n. Fine. Now let's do some questions. Let's take any number. Let's take 144. 144. And so number of factors of 144 is 69 होता है ना, 69 होता है. So number of factors is 5 into 3, that is 15. 15 number of factors are there. So 144, 15 by 2. This will be the product of the factors of 144. Product of factors of 144 will be 144 to the power n by 2. N is the number of factors of 144. 144 is a perfect square, so number of factors will be a odd number, that is 15 by 2. So now what you will do, and this square root will come inside, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको. You can write like this, and square root of 144 is 12, so this is 12 to the power 15 is the answer. Product of factors of 144 is the 12 to the power 15. I hope you got it, है ना. So whenever you will have a perfect square, so this situation will arrive. So that's why I've taken this example of a perfect square number. So I hope this is clear. This is not a difficult thing. Just remember n, like कोई भी number है उसका number of factors divided by 2. This is the product of the factors. Very simple. I don't think we need to further explain. Second thing, number of ways of writing a number as a product of two co-prime number. Number of ways, understand the question, number of ways of writing a number as a product of two co-prime numbers. So let's again take a small number. Let's take 12. Let's take 12. So if we write again this form, I have told you to write factors in this way. So this will be helpful again. 2, 6, 3, 4. Because like what is this? This is the product of two factors, no? Product of two factors is the number itself. What you are seeing here, like this form is useful in such a way, like in various way this form is very very useful. Here you can see itself that ये दो इन दोनों का प्रोडक्ट ही नंबर है ना. तो इसमें से लाइक यही पॉसिबिलिटीज है सारी. राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, यही सारी पॉसिबिलिटीज है. और कोई पॉसिबिलिटी है? राइटिंग 12 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, सारी ये 3 पॉसिबिलिटीज है ओनली, है ना. दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज. 1 into 4 थोड़ी 12 होगा, 2 into 12 भी नहीं होगा, 3 into 12 और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. दीज आर द ओनली कॉम्बिनेशन. अब इसमें से तुम्हें
Out of these combination, you have to select those which are co-prime. I hope you got it. Now, out of these three combination that are possible, 12 can be written as a product of two number in three ways. And out of these three ways, you have to figure out what are the pairs that are co-prime. This is co-prime. 112 is a co-prime. This is not co-prime. This is co-prime. These two are co-prime. But like for bigger number, we cannot do this thing. Hai na? In the exam, suppose bigger number comes. Suppose this number come. You cannot do like this. There should be some other way. So there is a formula that you can remember. Okay. The formula is, like suppose number is, and prime factorization form of number is the prime factorization form of number. Okay. Now formula for the number of ways of writing a number as a product of two co-prime numbers will be 2 to the power x minus 1. 2 to the power x minus 1. Where what is x? Where x is the number of prime factor. X is the number of prime factors. I hope you got it. Let me explain it again. Where x is the number of prime factors. For example, let's take 30. So 30 prime factorization form of 30 is 2 into 3 into 5. This is the prime factorization form of 30. How many prime factors 30 have? That is 3. So you can write 30 as a product of two co-prime numbers in how many ways? 2 to the power 3 minus 1 ways. So that is 2 to the power 2, that is 4. You can write 30 as a product of two co-prime number in 4 ways. You got this point? Number of prime factors of 30 is 3. You don't need to worry about what is the power. To explain it further, let's take one more example. First, let's see like this is right or not. First, let's verify this. So 130, we have taken a smaller number, so we can easily verify this thing. 4, 5, 6. Okay. So this is one is the co-prime. This is also co-prime. This is also co-prime. This is also co-prime. So there are 4 ways in which 30 can be written as a product of two co-prime numbers. I hope this thing is clear. So let's do one more example. Let's take 360. So 360 is like if we factorize this thing, so 9 into 4, 9 into 4, 2 into 5, 9 4 36. So this is 2 to the power 3, 3 square into 5. So how many prime factors are there? 2, 3, 5. These are the prime factors, 3 prime factors. So number of ways in which 360 can be written as a product of two co-prime will be 2 to the power 3 minus 1. That is, there are 4 ways in which 360 can be written as a product of two co-prime numbers. I hope it is clear. This depends only on the number of prime factors. Power doesn't matter here. This is also simple. I don't think further explanation is needed. Let's come to the next thing. Sum of co-primes of a given number n less than n. Let's understand this thing. So let me, like for this also there is a formula, and let's first let me tell you the formula. Okay. The formula is sum of, because here I will be using a concept that is called Euler number. Here I will be using a concept that is called Euler number, for which, what is Euler number, how to find the Euler number, for which I have given a link in the description of this video for the Euler number concept. ठीक है, उस like Euler number कैसे निकालते हैं, Euler number के application क्या है, for that you can find the link in the description of this video. Just watch that video, you will get to know what is Euler number. That is a very useful concept in the numbers. This will helpful in the remainders, in solving the equations at lot of places. Okay. So for that I have given the link in the description of this video. So formula is, suppose you have to find like 7. Let's take 7 is a number. Not 7, let's take 8. Sum of co-prime of given number n. So n is a number that is 8 less than n. इसके नीचे, ठीक है, ये लेस देन एन नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, लेस देन एन, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेस देन एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, नेचुरल नंबर्स फाइन. तो लाइक 1 से स्टार्ट होगा. सम ऑफ को प्राइम्स ऑफ गिवन नंबर n
गिवन नंबर n लेस देन n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द नंबर्स बिलो इट। 8 से छोटे ये नेचुरल नंबर्स हैं। 8 से को प्राइम कौन से? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। You need to find the sum of these numbers. You need to find the sum of these numbers. So sum of these number is 16. 16. This is the question. I hope now you understood the question. You need to find the sum of co-prime numbers of a given number. ठीक है, गिवन नंबर 8 है, इसके नीचे जितने नंबर्स 8 से को प्राइम है तुम्हें उनका सम निकालना। ये स्टेटमेंट समझ में आया? सपोज तुम्हें n नंबर कोई भी दिया जाए, उसके नीचे जितने नेचुरल नंबर्स इस नंबर से को प्राइम है उसका तुम्हें सम निकालना है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड विद द लाइक एग्जांपल। लेट्स टेक अ एग्जांपल, लेट्स टेक 12। तो 1 2 3 4 5 7 11। 1 इज को प्राइम, 2 नॉट, 3 नॉट, 4 नॉट, 5 7 एंड देन 11, है ना। सो दीज आर द नंबर्स दैट आर को प्राइम टू 12। तो इनका सम देखो 24 आ रहा है। तो दिस इज द वे, बट वी कैन नॉट डू लाइक दिस, है ना। एग्जाम में सपोज नंबर आ गया लेट्स से 345, फाइंड द सम ऑफ को प्राइम नंबर्स दैट आर को प्राइम टू द 355, है ना। 355 से नीचे नेचुरल नंबर्स और 345 से को प्राइम उनका सम निकालो। तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू डू लाइक दिस। ऐसे तो एग्जाम में कर नहीं सकते लिख के। तो देयर इज अ वे, there is a formula. So let me just tell you the formula. Formula is n by 2 e, n by 2 e, where e is a Euler number, where e is the Euler number, where e is the Euler number of n. This is the formula. This will give you the sum of co-prime numbers of a given number. Those are less than n, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला n by 2 en। एग्जाम्पल, अब यूलर नंबर कैसे निकालते हैं अगेन मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, बट कंप्लीट डिटेल में समझने के लिए जस्ट वॉच द वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो लाइक सपोज नंबर तुम्हारा है, सपोज 12 वाला हमें क्वेश्चन करना था। 12 का आंसर कितना? 24 आया था ना। तो व्हाट विल डू, 12 अपॉन 2, यूलर नंबर ऑफ 12 कितना होगा? यूलर नंबर ऑफ 12 वुड बी 12 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन 3, ऐसे निकालते हैं। जिसको पता है ग्रेट, नहीं पता है तो जस्ट वॉच द वीडियो, यू गेट द क्लैरिटी, ठीक है। 3 2 6, 6 का 2 आ जाएगा, 2 1 इंटू 2 दैट इज 4। सो दिस इज 4 2 2 24 आगे आंसर। सो सिंपल तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, n by 2 en, वेयर en इज अ यूलर नंबर ऑफ द गिवन नंबर। वो तुम्हें लाइक यू कैन लर्न हाउ टू फाइंड द यूलर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन वीडियो में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। So next thing, number of ways of expressing a number as a product of two numbers. This we already know. Let's take a 18. Let's take 18. So 1 into 18, I have told you to write always factor in this form. This will be helpful. तो देखो यहाँ पर भी इसका यूज होगा, ऑलरेडी मैं तुम्हें भी बताया था। 3 6 and so you can see here, this is the like 18 as written as a product of two numbers, है ना। 18 as a written as a product of two numbers or not? These are the ways 18 can be written as a, these are the only ways you can say 18 is written as a product of two numbers, fine. So like यहाँ से तुम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। फॉर्मूला इज, देखो इसके कितने फैक्टर्स है, इसके 6 फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय। तो 18 को अगर तुम्हें रिटर्न, यू हैव टू राइट 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो व्हाट यू विल डू, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला। बट वन थिंग, सपोज नंबर इज अ perfect square, for example 36. Suppose number is a perfect square like 36. So this is the formula you can note down for general number, है ना। But suppose this is 36. So now one thing for 36, 36 can be written as a product of 1 2 3 4 4। अब दो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। Find the number of ways in which 36 can be written as a product of two different number. Listen question carefully.
देखो पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। तो सिंपल पहले फॉर्मूला है तुम्हारा नॉर्मल नंबर के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। क्यों हो रहा है वो समझ में आ गया होगा 18 के एग्जांपल से। अब अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है व्हेन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नंबर तो दो तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो व्हेन नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज फॉर व्हेन n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला वेयर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, and n is the number of factors of n divided by 2 will give you the number of ways expressing as a product of two numbers, ठीक है। but when number is a perfect square, when number is a perfect square, then दो तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच, लाइक 36 एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, इन विच 36 कैन बी रिटन एज, can be written as product of two different number, can be written as product of two different number। ये बात समझ में आया। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 36 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ऐसे करके वो इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। इसमें मेंशन करेगा टू डिफरेंट नंबर। इसमें क्या कहेगा कि लाइक फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 36 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एनी टू नंबर मेंशन कर देगा, या फिर सेम नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, या फिर कुछ भी मेंशन नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गया होगा। तो अगर तुमसे ये कहता है कि डिफरेंट का करना है, तो डिफरेंट के लिए तुम्हें क्या करना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, है ना। जैसे 36 था, नंबर ऑफ फैक्टर्स -1/2, ये हो जाएगा सिंपल। अगर वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 36 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स आर सेम नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, वो भी चलेगा अगर वो बोल देते हैं। तो n +1/2। अब देखो फॉर्मूला में कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट तुम्हें अपने दिमाग से सोचना, यू हैव टू जस्ट थिंक ऑन योर माइंड, है ना। उससे करोगे तो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट अपने आप समझ में आ रहे हैं ना। देखो 36 है, 136, 2 18, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 3 एंड 4 9 और 6 × 6। अब जैसे अगर वो बोल रहा है कि यार ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है ना, अगर ये इंक्लूड नहीं करोगे तो एक फैक्टर हटा दो, है ना। कितने 36 से कितने फैक्टर, 9 फैक्टर्स हैं, 9 फैक्टर्स हैं। तो 9/2 करोगे तो तुम्हें पता है लाइक नहीं आएगा आंसर, 9 - 1 करेंगे अगर ये इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर इसको इंक्लूड करोगे तो 9 + 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। जनरल सबके देखो इवन फैक्टर्स होते हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्टली तुम्हारा हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो दो कंडीशन है, क्योंकि इनके ऑड फैक्टर्स होते हैं, है ना। ऑड फैक्टर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो लाइक 6 × 6 भी 36 होता है। तो अगर वो बोलता है कि तुम्हें डिफरेंट नंबर्स के बताने हैं, तो लाइक नंबर ऑफ फैक्टर्स -1/2 कर दोगे। अगर सेम वाला इंक्लूडेड है या फिर पूछा है कि किसी भी नंबर के, देन +1/2 कर दोगे, बिकॉज 6 × 6 ये वाला भी चीज इंक्लूड हो जाएगी। सिंपल है, आई डोंट थिंक लाइक फर्दर इसमें भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्लियर हो गया। ओके, सो लास्ट part, like last type of question that we have to do in the factors, find the pair of factors that are co-prime to each other. First, let's understand this thing with the help of a example. So let's take like a number, let's take 24. So like first I'm explaining what this statement means. So like write 1, again like remember this, practice this form, like writing in this way whenever you are writing the factors. So these are the factors that are 24. Now the question is about pair of factors, like 24 जो है इसके ये factors हैं, है ना। इसमें से तुम्हें select करना है pair of factors that are co-prime to each other. Like for example, अगर 1 से start करें तो 1 and 24 are co-prime, 1 12 1 8, 1 सबके साथ है, 1 6 and 1 4 1 3 1 2, these are the co-prime, है ना। ये co-prime है 24 के। find the pair of factors of like 24 that are co-prime to each other। स्टेटमेंट समझ में आ गया। नाउ अगर 2 के साथ चेक करो तो 1 ऑलरेडी चेक कर लिया, 24 नहीं है, ये कोई भी नहीं है, 2 3 है,
एक ये पेयर हो गया। 3 के साथ देखो तो कौन सा पेयर है, ये नहीं है, ये नहीं है, 8 है ना, और 4 है। दीज टू पेयर आर को प्राइम। 4 के साथ चेक करो, 4 के साथ तो कोई भी नहीं आएगा, 6 के साथ भी कोई नहीं, 8 के साथ अब कोई भी नहीं है। तो कितने हैं तुम्हारे, 1 2 3 6 7 3 10। so 10 पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 दैट आर को प्राइम टू इच अदर। आई होप अब स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा जाएगा ना। तो मैं 24 के पेयर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं जो को प्राइम हो, ठीक है। नाउ बट अब सपोज एग्जाम में कुछ एक बड़ा नंबर आ जाए, एग्जाम में एक बड़ा नंबर आ जाए, तो ऐसे तो लाइक इट्स नॉट पॉसिबल टू डू, है ना, मैनुअली एक एक फाइंड करना। तो आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो लेट्स से लाइक these are the prime factorization form of again p1 to the power, like let's take p, and p2 to the power q, and p3 to the power r and so on, ठीक है। ये प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म है किसी नंबर का। एंड सो द नंबर ऑफ वेज इन विच, लाइक नॉट नंबर ऑफ वेज, द पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट आर को प्राइम टू इच अदर ऑफ n, n के पेयर ऑफ फैक्टर्स जो को प्राइम होंगे, दैट विल बी गिवन बाय, लाइक एक मैं तुम्हें फॉर्मूला, लाइक देखो पहले मैं तुम्हें 2 के लिए बताता हूँ, ठीक है। जैसे कोई नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं, लाइक सपोज लेट्स टेक 24 है ना, 24 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। 24 का 2 टू द पावर 3 एंड ये है ना। तो इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर p तुम्हारा 3 है और q तुम्हारा 1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, जब ऐसे होगा तो फॉर्मूला 2 टू द पावर 0 टेकिंग सम एट 1 टाइम, ठीक है। फिर 2 टू द पावर 1 eq, दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आ गया, दिस इज द फॉर्म। अब इस पैटर्न को हम लाइक सपोज ये होता 120, ठीक है। ये 24 के लिए जहां पर ये 2 चीजें हुई, जहां पर ये r इन्वॉल्व होता वहां पर क्या होता, 2 टू द पावर 0 टेकिंग 1 एट अ टाइम सम टेकिंग 2 एट अ टाइम। आई होप ये समझ में आ रही होंगी ये चीजें तुम्हें, ठीक है। सम टेकिंग 3 एट अ टाइम EQR। अब अगर 4 होंगे तब क्या होगा, अब अगर इसमें लाइक लेट्स से 840 होगा, है ना। देखो लाइक अगर ये देखो था, ये इस फॉर्म के लिए p1 टू द पावर, जब प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म ऐसा है, जब प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म ऐसा है, दिस इज फॉर जब प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म ऐसा है, दिस इज, तो ऐसे तुम जनरलाइज कर सकते हो। अब सपोज प्राइम फैक्टरेशन, इसमें एक और चीज है बट आई एक्सपेक्ट वो तुम खुद से करोगे, वो मैं कभी लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह में मैं तुम्हें और समझा दूंगा, बट अभी के लिए इतना इनफ है ना। सपोज ऐसा, तब क्या करोगे, टेकिंग 1 एट अ टाइम, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला, टेकिंग 2 एट अ टाइम, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा में अगेन हम ये सब एक्सप्लेन करेंगे, टेकिंग 2 एट अ टाइम क्या होता है, टेकिंग 3 एट अ टाइम क्या होता है, टेकिंग 3 एट अ टाइम, टेकिंग 4 एट अ टाइम। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। आई होप फॉर्मूला समझ में आ गया। 2 टू द पावर 0। अब इसको याद करने का तरीका देखो क्या है, 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करोगे, है ना। देन टेकिंग अगर 0 है तो उसमें +1 कर दो, टेकिंग 1 एट अ टाइम। अगर 1 है तो उसमें +1 कर दो, टेकिंग 2 एट अ टाइम। अगर 2 है तो उसमें एक ऐड कर दो, टेकिंग 3 एट अ टाइम, फाइन। So this is the way we will do. Now let's apply this formula to 24. 24 we have got, I think, answer 10. So let's apply this formula to 24. So here p's value is 3 and q's value is 1. 2 to the power 0 and p plus 1, p plus q, and 2 to the power 1 p into q. So this will give you 1 4 and 2 into 3, that is 6. तो हमारा लाइक काउंटिंग से भी 10 आ रहा था। So this is the way you will calculate the like you will find the pair of factors of a number that are co-prime to each other, ठीक है। तो हमने ये 2 नंबर का एक एग्जांपल कर लिया। लेट्स डू एग्जांपल फॉर 3 नंबर्स, लाइक लेट्स डू 120। 120 के होते हैं 15 8 से
तो सपोज फॉर दिस वन, तो यहाँ पर देखो p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 1 है। तो वी अप्लाई द फॉर्मूला हेयर, अगर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला वैल्यू 2 टू द पावर 0 टेकिंग सम वन एट अ टाइम, है ना, p प्लस क्यू प्लस आर। देखो लाइक कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द पैटर्न, तुम फॉर्मूला अपने आप लिख लोगे, है ना, कितने भी नंबर्स का वो आ जाए। एंड आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग, लाइक बाद में देखेंगे कि जैसे बहुत बड़ा लाइक जिसमें लाइक 7-8 तुम्हारे प्राइम फैक्टर आ जाए, रेयरली वो क्वेश्चन आएगा, उसका भी कैसे उसको डील करेंगे दैट विल ऑल्सो सी, बट राइट नाउ वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इज मोर देन इनफ, ठीक है। वैसे बहुत रेयर है क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन भी आना लाइक दिस इज द लाइक वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, पी क्यू आर, और हम बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 + 1 एंड सो दिस इज 3 + 1 + 3। कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कहीं एरर हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 1 × 1, so if you add all these and this is 5, this is 7 and 2, that is 14, this is 4 and 5 4, not 5, just a minute, this is a like multiplication, 3 4 12, so 12 5 17 31, so 31 is the answer. So like there are 31 pairs, like 120 के फैक्टर्स के 31 पेयर्स हैं दैट आर को प्राइम टू ईच अदर। आई होप यू अंडरस्टूड कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे और जनरलाइज फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टर्स, लाइक दीज आर द मोर और लेस थिंग कैन बी आस्क्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टर। टू थिंग्स फॉर स्टार्ट इंपॉर्टेंट कि लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म कैसे जल्दी लिखोगे, फिर कैसे तुम उसको रिप्रेजेंट करोगे। तुमने देखा होगा आई हैव यूज लाइक वो जो मैंने बताया था ना, तुम्हें लिखना ऐसे, जैसे फैक्टर्स ऐसे लिखना, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर यही चीज यूज हुई है। एंड देन वी हैव जनरलाइज, देन वी हैव मेक द फॉर्मूला फॉर द कैट। लाइक अगेन ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैट जैसे एग्जाम के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यू विल नॉट बी लाइक कि सिर्फ फॉर्मूलास रटते जाओ, दैट लाइक वो फिर लर्निंग तुम्हारी डेवलप नहीं हो पाएगी, that will be the problematic. Okay, so that's it for today. I hope you guys learned something, so make sure you join the Telegram channel and subscribe to this